Hello friends, myself Professor Bharat Basrani, very happy to present in front of you MCQs part 1 for the chapter called Sale or Conversion of Firm into a Company only for FI BCom students semester 1 English medium. The name of the subject is Financial Accounting and this is just a first video based on MCQs. I hope it will be more beneficial to you and you will enjoy and you will get an idea that how MCQs will be asked to you for semester 1 and more videos I will be presenting in front of you. Don't forget to subscribe and like my videos. So let us start our journey of MCQs. This MCQ is based on sale or conversion of a firm into a company. From that chapter I have prepared few MCQs for the students. So let us have the first MCQ. Liabilities and assets are to be transferred to realization account. So let's see its option. It will be transferred at what price? Sir, it will be transferred either at cost price or at market value, or option C at replacement value, or option D none of the above. So at what value we are going to transfer the liabilities and the assets of the firm into the realization account? At what price? Sir, it will be valued at book value. In other words, it is cost price. So the right answer is cost price. Next, number 2, credit balance of profit and loss account and general reserves are to be transferred to which account? Let's see the option. It will be transferred either to realization account or at cash or bank account, new company's account, or we can say purchasing company's account, or it may be transferred to partner's capital account. These are the old balances of the firm. Where we will transfer it? Sir, we will transfer it to partner's capital account. So the right answer is option D. Number 3, a bit long question for you. Let's see the full question. The balance sheet of a firm disclosed debtors and bad debt reserve at rupees 60,000 and 4,000 respectively. On conversion of firm into a company, debtors are to be taken at 10% less. What would be debtors value for net asset calculation? डेटर्स की क्या वैल्यू रहेगी सर वैल्यूएशन के लिए? नेट एसेट जो हम पीसी कैलकुलेट करते हैं परचेस कंसीडरेशन, उसके लिए डेटर्स की क्या वैल्यू रहेगी, किस तरीके से वैल्यूएशन होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं. आंसर मे बी एट 56,000 और इट मे बी 54,000 और 50,400 और इट मे बी 57,600. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करें तो 60,000 माइनस 4,000, तो कुछ स्टूडेंट के आंसर लिख देंगे सर 56,000. लेकिन क्या क्वेश्चन में कहा गया है? कन्वर्जन के वक्त डेटर्स 10% लेस कंसीडर करना है आपने. सो बुक वैल्यू कितनी है उस पर फोकस करना है. 60,000 10% लेस करेंगे, सीधा जवाब है 60,000 10% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000. सो 60,000 माइनस 6,000, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. 54,000 इज द राइट आंसर. स्टूडेंट्स यहाँ गड़बड़ करेंगे. 60,000 माइनस 4,000 तो फिर 56,000, उस 56,000 पे शायद 10% निकालने जाए तो 50,400 वो भी ऑप्शन में रखा है. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या वैल्यू सही रहेगी. फोर्थ पॉइंट, fourth MCQ, amount determined as payable by a new or we can say purchasing company or purchasing company on conversion of a firm is known as. जो अमाउंट पे करना है नई कंपनी ने फर्म को, उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहेंगे, कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस या सेल्स प्राइस?
नई कंपनी ने पुरानी फर्म को जो पे करना है उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी पेड? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा जाएगा, कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा, परचेज प्राइस या सेल्स प्राइस? द राइट आंसर इज परचेज प्राइस, जिसे हम पीसी कहते हैं एक तरीके से, परचेज कंसीडरेशन। पॉइंट नंबर 5, 2/5 of 20,000 equity shares of rupees 10 each received by a firm against purchase consideration has been sold in the market at rupees 13 per share. The profit to be credited to realization account would be amounted to। 10 रुपए वाले शेयर 13 रुपए में बेचे गए हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो है ही है। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए। 3 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर हो रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, 12,000 का, 18,000 का या 24,000 का। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, माइंड कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। मेंटल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है। 20,000 का 2/5 निकालना है पहले, यानी 40% निकाल देना है। 2/5 का मतलब 40%। तो 20,000 का 2/5 कितना होगा सर? 8,000। 40% पकड़ लेते हैं, तो 20,000 का 40% 8,000। ठीक है, 8,000 इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, सोल्ड। ठीक है, अब 10 रुपए वाले शेयर 13 में बेचे, यानी एक शेयर पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सेल्स प्राइस इज 13, कॉस्ट प्राइस इज 10, तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर, कितने शेयर्स बेचे थे सर? 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 24,000। सो द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 24,000 is the right answer. Next, if dissolution or conversion expenses are to be borne and paid by purchasing company, then what entry should be passed in the books of a firm? कन्वर्जन का या डिसोल्यूशन का जो भी खर्चा हो रहा है, अगर नई कंपनी पे कर रही है तो उसकी एंट्री, फर्म के अंदर उसकी एंट्री क्या होगी? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, debited to new company's account by crediting realization account, debited to realization account by crediting cash oblique bank account, cash or bank account. No entry will be passed in the books of a firm. बेसिक्स अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई नई कंपनी ने अगर खर्चा किया है, एक्सपेंसेस बेयर किए हैं, तो क्या पुरानी फर्म के अंदर इसकी एंट्री होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी। द आंसर, राइट आंसर इज नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। अगर फर्म खर्चा करती एक्सपेंसेस का तो एंट्री आती। यहाँ तो परचेसिंग कंपनी ने एक्सपेंसेस बेयर किए, तो नो एंट्री विल बी पास्ड इन द ओल्ड फर्म। फर्म के अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, सेवंथ, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज फिक्स्ड बाय टोटलिंग ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर, preference shares, debentures, cash, etc. Which method is used for this kind of purchase consideration? तो आपको बताना है ये कौन सी मेथड है। बेसिकली दो ही मेथड है, आपको शायद पता होगा। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए दो बेसिक मेथड है, उसमें से एक होगी। तो आपको अब सोचना है। ऑप्शंस आपके सामने रखता हूँ। सेल्स मेथड, कंसिडरेशन मेथड, नेट एसेट मेथड, लमसम मेथड। यहाँ पे क्या है सर? ऑप्शंस में दिया है परचेस परचेस कंसिडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश, ये सब दिया गया है। पीसी कैलकुलेट किया, इनको लेकर अगर पीसी कैलकुलेट किया गया है तो ये कौन सा मेथड है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंसिडरेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम भी है नेट पेमेंट मेथड। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो नाम है, कंसिडरेशन मेथड या दूसरा नाम है नेट पेमेंट मेथड। Number 8, if no information is given about the distribution of shares or debentures are received as purchase consideration among the partners, how it would be distributed? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि शेयर्स और डिबेंचर्स को जो पीसी में मिले हैं, रिसीव हुए हैं फर्म को, फर्म के पार्टनर्स को, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको? नंबर 1, एज पर प्रॉफिट और लॉस रेशियो, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो के हिसाब से करेंगे, इक्वल शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
एज पर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से करेंगे या एज पर रियलाइजेशन प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा सर? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा सर? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, एज पर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स मिले हैं एसपीसी, उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में किया जाएगा। नाइन्थ नंबर, इफ द कंपनी हैज टेकन ओवर एसेट्स for rupees 6 lakhs and liabilities for rupees 2 lakh 10,000, the company allowed rupees 30,000 as a goodwill. Find out the amount of PC. आपने परचेस कंसिडरेशन मेंटली कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? चलिए, तो नेट एसेट के हिसाब से चलेंगे। आपको एसेट दी है 6 लैक्स प्लस गुडविल 30,000, सो हो गया 6,30,000 लेस लायबिलिटीज 2,10,000। तो 2,10,000 लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो मैंने तो आंसर कैलकुलेट कर लिया है मेंटली। क्या ये सही कैलकुलेशन है? ऑप्शंस देखते हैं, क्या ऑप्शन में वो वैल्यू आ रही है? 4,20,000, 3,90,000, 3,60,000, 4,40,000। मैंने हर तरीके से रखने की कोशिश की है। कुछ लोग क्या करेंगे, 6 लाख माइनस 2,10,000, 390 रखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, 6 लाख, फिर ये 210 + 30 यहाँ कर देंगे, तो 240 माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो 360 निकालेंगे। तो हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन करने की कोशिश करेगा। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो गड़बड़ करेगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फटाफट से बोल देगा सर 4,20,000 सही जवाब है सर। 6 lakhs + 30,000 630, 630 माइनस 210 करेंगे तो 420 आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ कंपनी गिव्स 35,000 शेयर्स, if company gives 35,000 shares each of rupees 10 at a premium of 20% and remaining amount in cash towards purchase price, find out the balancing amount of cash if purchase price is rupees 4,48,000। आपको परचेस प्राइस दे दी है, परचेस कंसिडरेशन दे दिया है 4,48,000 और इसका कॉम्बिनेशन दे दिया है शेयर्स और कैश है। शेयर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? कैश की होगी। चलिए, तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं कि कैश की बैलेंस आपको ढूंढनी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक है 48,000, दूसरा है 63,000, तीसरा है 43,000 और चौथा है 28,000। तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे? तो वैल्यूएशन में सबसे पहले तो शेयर्स कितने हैं? 35,000 शेयर्स है, एक शेयर का भाव है 10 रुपया, तो टोटल शेयर हो गए 3,50,000 एट पार। 10 रुपए के भाव के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से 35,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 3,50,000। 20% प्रीमियम ऐड होगा, ऐड करते प्रीमियम। सो 3,50,000 पे 20% प्रीमियम निकालेंगे तो 70,000 होगा। सो 3,50,000 प्लस 70,000 कितना हो गया दोस्तों? 4,20,000। 4,20,000 के शेयर्स हैं। हमारा पीसी कितना है? 4,48,000 है। सो 4,48,000 माइनस 4,28,000 क्या आ गया? आंसर आ गया, अंडरलाइन भी हो गया, 28,000 आंसर सही जवाब।